Students, so let's continue with India House. जैसे कि अभी हमने बात कर रहे थे अबाउट पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो एक इंडियन पोएट थे. उन्होंने इंडिया हाउस इस्टेब्लिश किया था और यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं, जो इंडियन यूथ है, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी और वो लोग इंग्लैंड में पढ़ते थे. वन ऑफ देम वॉज स्वतंत्रवीर सावरकर. वो भी आए थे और उनको भी स्कॉलरशिप मिलती थी. और स्वतंत्रवीर सावरकर के बारे में हम ऑलरेडी पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने अभिनव भारत शुरू किया था और किस तरीके से वो जो लिटरेचर है और जो गन्स और आर्म्स है वो कैसे इंडिया में सप्लाई करते थे टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. सो दिस इज अ पर्सन हु स्टार्टेड इंडिया हाउस, दैट इज श्यामजी कृष्ण वर्मा. एंड हियर यू कैन सी एट द बैकग्राउंड दैट इज इंडिया हाउस. ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैडम कामा. मैडम कामा ने जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो स्टटगर्ट जो इन जर्मनी में है, वहाँ पे उन्होंने एक इशू रेज किया था. वो इशू था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में. तो हियर यू कैन सी इन द फोटो शी इज़ हैविंग एन इंडियन फ्लैग जिसके ऊपर लिखा है वंदे मातरम. एंड शी इज़ आस्किंग दैट व्हाई इज़ इंडिया नॉट गेटिंग द फ्रीडम. हियर द फोटो ऑफ दिस पर्सन इज मदनलाल धिंगरा. मदनलाल धिंगरा, he was also one of the youth. He had killed the British officer जिसका नाम था कर्सन वाइली. You can see on the photo. Now the next part that we shall be doing, that is Gadar movement. During the period of First World War, the revolutionary work against the British government got a momentum. The revolutionary felt that transfer of power can be brought into India with the help of enemies of the British, and in this attempt, help of Indian soldiers can also be taken. So, a movement that's named as Gadar movement, and to take the revenge, an organization was being started up by the people. You can see on the screen. The movement was started, and that was an organization, was a revolutionary organization was being set up. The name is Gadar. The Indian who was living in America and Canada, they had established the Gadar organizations. Here we have seen some of the photos, that is Lala Hardayal Bhai, Parmanand, Dr. Panduranga Sadasiv, Khakoji, etc. These revolutionaries were very important and they started out this organization. The word Gadar, the meaning of Gadar means to revolt, to fight. Gadar was also a journal of this organization that acted as its mouthpiece. यहाँ पे you can see that this is a journal, okay, which was being started, and through this journal the effects of the British rule in India were being pointed out. So it gave information about the daring deeds of the revolutionaries. You can see some Indian heroes over here in the photograph, in the video. Now through these journals, we can come to know about the British rule in India, how it was being pointed out, and it gave information about the daring deeds of the revolutionaries also. So in this way, love for the nation and armed rebellion was the message given through the journal, that is the Gadar, to the Indians. The leader of the Gadar organization to take advantages of this war, of this warlike situation. So they threw out a plan of revolt in Punjab against the British. They pursued the Indian soldiers in the British army to join this revolt, but there were some people like Ras Bihari Bose, Vishnu Ganesh, and you can see some other people also, Jagat Singh and all this. Yeah, they were being hanged. Okay. जब फर्स्ट वॉर था तो रिवॉल्यूशनरी वर्क तभी भी होते थे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड राइट फ्रॉम द 1857 रिवॉल्ट होने के बाद से ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन शुरू होने लगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर. तो फर्स्ट वॉर के दरमियान जो रिवॉल्यूशनरी, उनको ऐसे लगा था कि हम ये जो पावर जो ब्रिटिश के हाथों में है वो हम इंडिया को दे सकते हैं अगर हम ब्रिटिश के जो दुश्मन है, मतलब कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अगर हम ब्रिटिश का जो एनिमीज़ हैं उनके साथ अगर हाथ मिला लें तो शायद हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे सकते हैं. सो
वो लोग ये अटैम्प्ट कर रहे थे इंडियन सोल्जर्स के किस तरीके से किया जाए। इनकी सोच थोड़ी बहुत नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मिलती थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी का कहना भी उनका यही था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसी तरह के ये अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी, एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था गदर। और यहाँ पे जो अमेरिका में और कनाडा में जो लोग, जो इंडियन लोग रहते थे, उन्होंने एस्टेब्लिश की ये गदर ऑर्गेनाइजेशन। लाला हरदयाल, भाई परमानंद, यू कैन सी ओवर हियर, सी द इंडियन सोल्जर्स, ओके। सो दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट इट कि किस तरीके से हम एनिमीज़ के साथ हाथ मिला लें और हम ये करें। तो दिस इज़ द लोगो ऑफ द गदर मूवमेंट एंड द पीपल हु आर इन अमेरिका, यू कैन सी ओवर हियर, अमेरिका एंड कनाडा में और दूसरी जगह पे जो सिख लोग स्पेशली जो रहते थे यहाँ पे, दे वांटेड एंड दे हैड एस्टेब्लिश्ड द गदर ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे यू कैन सी सम मेनी पीपल लाइक you come to know about here in this picture. The first, Lala Hardayal, Bhai Parmanand, Dr. Panduranga Sadasiv Khakoji. These were, and besides this, there were other people also. They led out this revolutionary movements and they were the main leaders, important leaders of this organization. यहाँ पे अगर हम देखें कि गदर का मीनिंग क्या होता है, गदर का मीनिंग होता है रिवॉल्ट, मतलब फाइट करो आप। गदर एक ऑल्सो एक जर्नल था यहाँ पे, इट वॉज एक्टिंग एज अ माउथ पीस, मतलब ये जर्नल्स में ये बताया गया था कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में है वो किस तरीके से है ना। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे अत्याचार होते थे ब्रिटिश लोगों की तरफ से, लेकिन थ्रू दिस जर्नल लोगों को इन द वर्ल्ड उनको पता चलता था कि हाउ इज़ द ब्रिटिश रूलिंग इन इंडिया, और उनके इफ़ेक्ट्स जो थे वो पॉइंट आउट करते थे। सो दे वर मेनी पीपल, यू कैन सी इन द फोटोज़, many people have been there who were the part of this organization, and it gave information about the daring deeds of the revolutionary, कि revolutionaries ने क्या क्या daring deeds किए। इसकी वजह से लोगों में भी इंस्पिरेशन आता था, and in this way, इस तरीके से जो अपने देश के प्रति अपना जो प्यार है, इसी तरीके से पेट्रोटिज्म जो था वो ज़्यादा इंस्पायर होता था और लोग ज़्यादा और अपनी नेशन की तरफ पेट्रोटिक होते थे, और आर्म रिबेलियंस भी शुरू किया जाता था थ्रू द, एंड यहाँ पे आर्म रिबेलियन शुरू करना, ये जो मैसेज दिया जाता था थ्रू द जर्नल, दैट इज़ गदर। हियर इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन यू कैन सी many Indian heroes who had been there. Here this is Ras Bihari Bose. Now let's talk about Ras Bihari Bose. He decided along with Vishnu Ganesh Pingle, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम एक रिवॉल्ट करेंगे, बट ड्यू टू द ट्रेचरी, क्योंकि ट्रेचरी होने लगी। ट्रेचरी का मतलब यहाँ पे दगाबाजी, किसी ने जाके इन्फॉर्मेशन दे दिए थे ब्रिटिश को, तो इसी तरीके से ब्रिटिश ने उनके जो प्लान थे वो ट्रेस कर लिए थे, और इसी तरीके से विष्णु गणेश पिंगले, ही वॉज इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए एंड ही वॉज बीन हैंग्ड। एंड रास बिहारी बोस वो सीक्रेटली बहुत अच्छी तरीके से एस्केप हो गए ये चीज़ से, और उन्होंने अपनी जान बचा दी है। बट ही वेंट टू जापान, वहाँ पे भी जापान में जाने के बाद भी ही डिड नॉट स्टॉप, वहाँ पे भी अपनी रिवॉल्यूशनरी वर्क वो शुरू करते थे। और इसी तरीके से द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो था, ओके, वहाँ पे एक्टिव रहता था ड्यूरिंग दिस वॉर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। यहाँ पे बर्लिन में भी वीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, भूपेंद्र दत्त एंड हरदयाल वो एंटी ब्रिटिश प्लान्स प्रिपेयर करते थे विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री, बिकॉज जर्मनी वॉज द एनिमी ऑफ ब्रिटिश, सो दैट इज़ वाई जर्मनी जो था वो इन लोगों को हेल्प करता था। एंड इन 1915 महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला एंड उबैदुल्ला सिंधी, दे एस्टैब्लिश्ड अ प्रोविशनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया इन काबुल। काबुल में उन्होंने फ्री इंडिया जो था गवर्नमेंट, प्रोविशनल गवर्नमेंट, वो उन्होंने सेटअप कर लिए थे। नाउ जो लोग जो ब्रिटिशर्स के हाथ में आए थे, दे वर बीन हैंग्ड, उनको सज़ा सुनाई गई थी। एंड दिस इज़ द फोटो ऑफ दिस वन महेंद्र, दिस इज़ अ फोटो ऑफ भूपेंद्र दत्ता एंड other people also, they had been giving, sacrificing their life. Here you can see Mahendra Pratap, you can see Hardayal and many other people who had been taking part in this Gadar movement.
So students, with this we stop over here. Thank you.